Hello everyone, welcome to Mastura classes. This is Saima Arif here, and today we are going to start our fourth chapter of class 7th polity. That is growing up as boys and girls. Being a boy or a girl is an important part of one's identity. The society we grow up in teaches us what kind of behavior is acceptable for girls and boys, what boys and girls can or cannot do. We often grow up thinking that these things are exactly the same everywhere, but do all societies look at boys and girls in the same way? We will try and answer this question in this chapter. We will also look at how the different rules assigned to boys and girls prepare them for their future roles as men and women. We will learn that most society values men and women differently. The roles women play at the work and the work they do are usually valued less than the roles men play and the work they do. This chapter will also examine how inequalities between men and women emerge in the area of work. So, growing up as a boy and girl, this fourth chapter tells us about the basic conditions of a boy and a girl. When a boy and a girl grow up in a society, how they identify, how the society teaches that what kind of work boys and girls have to do. Okay, so in this chapter we will figure out some problems between boy and a girl. Growing up in a Samoa in the 1920s, the Solomon Islands are part of a large group of small islands in the southern part of the Pacific Ocean. तो ये जो Solomon Island है ये एक large part है एक small island का in the southern part of the Pacific Ocean. ठीक, as we know Pacific Ocean ये in the 1920s according to research reporters on Solomon society, children did not go to school. ठीक है, फिर 1920s में क्या हो गया according to research, तो ये एक रिपोर्ट आई थी जो समन सोसाइटी है वहाँ पे जो बच्चे चिल्ड्रन थे, चिल्ड्रन डिडंट गो टू स्कूल. ओके, दे लर्न मनी थिंग्स सच एज हाउ टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन और डू हाउस होल्ड वर्क फ्रॉम ओल्डर चिल्ड्रन एंड फ्रॉम एडल्ट. तो उनको क्या सिखाया जाता था कि कैसे काम करे, कैसे टेक केयर करे, मतलब कि जो उनसे यंगर बच्चे होते हैं और जो उनके बड़े होते वो उनको हाउस होल्ड वर्क सिखाते थे. ठीक है, फिशिंग वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑन द आइलैंड. एज वी नो, जब ये जो ये सामन आइलैंड है ये एक आइलैंड पे मीन्स कि एक आइलैंड पे बसा हुआ था, तो ओबियसली वहाँ पे जो फिशिंग है वो एक मेन एक्टिविटी थी. ठीक, यंग पीपल देयर फॉर लर्न टू अंडरटेक लॉन्ग फिशिंग एक्सपेडिशंस, बट दे लर्न दीज थिंग्स एट डिफरेंट पॉइंट्स इन देयर चाइल्डहुड. ठीक है, जो यंग पीपल है देयर फॉर दे लर्न टू अंडरटेक लॉन्ग फिशिंग एक्सपेडिशंस मीन्स कि वो वहाँ पे क्या करते थे, मोस्ट ऑफ द वर्क इज टू डू द फिशिंग. Okay, as soon as babies could walk, their mothers or other adults no longer looked after them. Older children, often as young as 5 years old, took over this responsibility. तो क्या होता था, जैसे कि as soon as baby, जब वो जो बच्चे होते वो जब थोड़े धीरे धीरे बड़े हो जाते थे, जो उनकी माएँ होती थी और जो अडल्ट होते थे नो लॉन्गर लुक आफ्टर देम, फिर वो उनको ज़्यादा ख्याल नहीं रखते थे. जो ओल्डर चिल्ड्रन ऑफन एज यंग एज 5 years old, जो 5 साल के बच्चे होते थे, टुक ओवर दिस रिस्पॉन्सिबल, उनको ये रिस्पॉन्सिबल दी जाती थी. बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स लुकड आफ्टर देयर यंगर सिबलिंग्स. जो बहुत सारे मीन्स कि बॉयज़ एंड गर्ल्स थे उनको कौन लुकड आफ्टर करता था, उनके जो छोटे ये ना यंगर ये सिबलिंग्स होते थे. बट बाय द टाइम अ बॉय वाज अबाउट 9 years old, he joined the older boys in learning outdoor jobs like fishing and planting coconut. जब एक बच्चा वहाँ पे जब एक लड़का वहाँ पे क्या हो जाता 9 years old, जो बच्चे 9 years old हो जाता था, तो उसको मीन्स कि उसको किसके साथ ज्वाइन किया जाता था, एक ओल्डर बॉय मीन्स कि उनसे बड़े के साथ ज्वाइन किया जाता था, ताकि वो एक बाहर के मीन्स कि लाइक फिशिंग प्लांटिंग कोकोनट्स की जो भी ये जॉब्स है वो सीख सके. गर्ल्स हैड कंटिन्यू टू लुक आफ्टर स्मॉल चिल्ड्रन और टू अरेंज फॉर एडल्ट स्टिल दे वेयर टीनेजर्स. जब तक वो टीनेजर्स होते, एज वी नो गर्ल्स हैव टू do the task at
home to look after the children and all that things. But once they become teenager, they had much more freedom. जब वो टीन एजर हो मीन्स कि टीन एजर मीन्स कि जो टीन एज होती है, तो उनको ये दे हैड मच मोर फ्रीडम, तो उनको कुछ ज़्यादा फ्रीडम मिलती थी. आफ्टर द एज ऑफ 14 और सो गर्ल्स आल्सो वेंट ऑन फिशिंग ट्रिप्स वर्कड इन द प्लांटेशंस. तो जब वो 14 वगैरह की होती थी गर्ल्स, तो उनको भी फिशिंग ट्रिप्स दी जाती थी, और कुछ मीन्स कि जैसे कि ये कोकोनट प्लांटेशन ऑफ कोकोनट्स, ये तो वो सिखाया जाता था. लर्न हाउ टू वी बास्केट्स, और बास्केट्स कैसे बनाए जाए वो सिखाया जाता है. कुकिंग वॉज डन इन स्पेशल कुकिंग हाउसेज वेयर बॉयज वेयर सपोज टू डू मोस्ट ऑफ द वर्क वाइल गर्ल्स हेल्पड विद देम विद द प्रेपरेशन. ग्रोइंग अप इन मेल मध्य प्रदेश इन द 1916. अब 1916 अभी हमने देखा सेमोन में 1920s में एज अ बॉय एंड एज अ गर्ल कैसे ग्रो होते थे. नाउ वी लुक एट द मध्य प्रदेश इन द 1916s में कैसे वो ग्रो हुए. द फॉलोइंग इज अडॉप्टेड फ्रॉम एन अकाउंट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल टाउन इन मध्य प्रदेश इन द 1960. फ्रॉम क्लास from class 6 onwards, boys and girls went to separate schools. The girls' school was designed very differently from the boys' school. They had a central courtyard where they played in a total seclusion and सेफ्टी फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड. तो क्या होता था मीन्स कि यहाँ पे जो ये फ्रॉम क्लास 6 से ऑनवर्ड जो बॉयज़ और गर्ल्स है उनको सेपरेट स्कूल्स में भेजा जाता था, और जो गर्ल्स का जो स्कूल है वो उसी हिसाब से डिज़ाइन किया जाता था, जहाँ पे डिफरेंटली वो मीन्स कि जहाँ पे इनको कैसे डिज़ाइन किया जाता है, जहाँ पे जो बॉयज़ के स्कूल है उससे बिल्कुल ही डिफरेंटली उनको डिज़ाइन किया जाता था. दे हैड अ सेंट्रल कोर्ट यार्ड. उनको एक सेंट्रल कोर्ट यार्ड मीन्स कि एक बड़ा सा कोर्ट यार्ड दिया जाता है जहाँ पर वो खेलते थे. The boys' school had no such courtyard, and our playground was just a big space attached to the school. जो boys की स्कूल में कोई courtyard नहीं था, इतना बड़ा कोई courtyard नहीं था, और ये जो playground है वो एक बहुत बड़ी space attached की जाती थी school के साथ. Every evening once school was over, the boys watched as hundreds of girls crowded the narrow street. तो हर शाम जब स्कूल ख़त्म होता था, जब स्कूल की छुट्टी होती थी, जब स्कूल ऑफ होता था, बॉयज़ क्या देखते थे, हंड्रेड्स ऑफ गर्ल्स क्राउडेड, हाँ बहुत सारे मतलब 100 की तादाद में जो गर्ल्स हैं क्राउडेड द नैरो स्ट्रीट. वो जो उससे जो स्ट्रीट है, जो गली है, उससे क्या हो जाती थी, वो क्राउडेड हो जाती थी, मीन्स कि गर्ल्स के वजह से वो बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाती थी. एज दीज गर्ल्स वॉकड ऑन द स्ट्रीट दे लुक्ड सो पर्पसफुल. जब वो स्ट्रीट्स पे चलते थे मीन्स की गर्ल्स, तो दे लुक सो पर्पसफुल, मीन्स की पर्पसफुल किसी मकसद से. दिस वॉज अनलाइक द बॉय हु यूज द स्ट्रीट एज अ प्लेस टू स्टैंड अराउंड आइडलिंग, टू प्ले, टू ट्राई आउट ट्रिक्स विद देयर बाइसिकल्स. फॉर द गर्ल्स द स्ट्रीट वॉज सिंपली अ प्लेस टू गेट स्ट्रेट होम. मतलब कि जो गर्ल्स के लिए वो जो स्ट्रीट है वो सिंपली थी एक ऐसी जगह जो जहाँ से स्कूल से निकल के वो डायरेक्टली अपने स्ट्रीट टू अपने होम में जाए, अपने घर जाए. The girls always went in groups, perhaps because they also carried fears of being teased or attacked. जो गर्ल्स है जब वो स्कूल से निकलती थी वो इन अ ग्रुप निकलती थी, तो इसका क्या मकसद होता था शायद कि वो के मतलब कि वो क्या डर अपने अंदर कैरी करते हैं कि मतलब कि कोई इनको टीज़ ना करे या कोई उन पर अटैक ना करे. आफ्टर रीडिंग द टू एग्जाम्पल्स वी रियलाइज दैट देयर आर मनी डिफरेंट वेज ऑफ ग्रोइंग अप. अब हमने ये दो एग्जाम्पल्स देखी समन की और समन आइलैंड की, और हमने देखी मध्य प्रदेश की. समन जो 1920s में ग्रोइंग अप का एक एपिसोड शो किया, और यहाँ पे 1916 में मध्य प्रदेश में. तो हमने जाना कि जो ये टू एग्जाम्पल्स अब जो देकर है, इससे क्या रियलाइज़ हुआ कि डिफरेंट तरीके से बॉयज़ एंड गर्ल्स क्या करते हैं, ग्रो करते हैं. एंड देयर आर मनी डिफरेंट वेज ऑफ ग्रोइंग अप. ऑफन वी थिंक दैट देयर इज़ ओनली वन वे इन विच चिल्ड्रन ग्रो अप. हाँ, कभी कभी हम क्या सोचते हैं, मीन्स कि अक्सर हम क्या सोचते हैं कि एक ही तरीका है, कि जब एक ही तरीका होता है जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनका ग्रो करने का भी एक ही तरीका होता है. बट नो, हमने वो एग्जाम्पल से ये सीखा देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ये है ऑफ ग्रोइंग अप.
दिस इज़ बिकॉज वी आर मोस्ट फैमिलियर विद आवर ओन एक्सपीरियंस। इससे मीन्स कि हमें क्यों लगता है कि एक ही तरीका है, बिकॉज वी आर फैमिलियर ऑफ आवर ओन एक्सपीरियंस। क्या अभी हमने दूसरों का एक्सपीरियंस नहीं किया है कि ये कैसे ग्रो होते हैं। इफ़ वी टॉक टू एल्डर्स इन आवर फैमिली वी विल सी दैट देयर चाइल्डहुड्स वेयर प्रॉब्लली वेरी डिफरेंट फ्रॉम आवर्स। अब अगर हम बड़ों मीन्स कि जो हमारे एंसेस्टर्स है, जो हमारे बड़े हैं, अगर हम उनकी बात करें हमारी फैमिली में, तो उनका जो चाइल्डहुड है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है हमारे चाइल्डहुड से। इट्स वेरी ऑब्वियस। वी आल्सो रियलाइज दैट सोसाइटीज़ मेक क्लियर डिस्टिंक्शंस बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स। और हमें मीन्स कि हमें ये रियलाइज़ होता है जो हमारी जो सोसाइटीज़ है वो मेक क्लियर डिस्टिंग मीन्स कि बहुत क्लियर फ़र्क करती है बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स में। दिस मीन्स फ्रॉम ए वेरी यंग एज वी आर फॉर एग्जाम्पल गिवन डिफरेंट टॉयज़ टू प्ले विद। देखो बॉयज़ आर यूजुअली गिवन कार्स टू प्ले विद एंड गर्ल्स डॉल। अब हम अगर फ्रॉम द वेरी बेसिक, अगर हम फ्रॉम द वेरी बिगनिंग देखें, जो बॉयज़ हैं जो उनको क्या दिया जाता है, दे शुड हैव गिव टू द कार्स टू प्ले। एंड जो गर्ल्स हैं उनको क्या दी जाती है, डॉल टू प्ले, बिकॉज शी इज़ अ गर्ल तो उसको क्या दी जाएगी, डॉल। वाई शी कांट यूज़ द कार टू प्ले। Okay, both toys can be a lot of fun to play with. ठीक, why are girls then given dolls and boys cars? It's a question. Toy become a way telling children that they will have different futures when they become man and woman. तो जो टॉय है जब हम उनको बचपन में ये देते हैं कि, तो ये इस क्या इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट्स दैट जब व्हेन दे बिकम अ मैन एंड अ वुमेन इन फ्यूचर, तो इन देयर फ्यूचर विल बी वेरी डिफरेंट फार फ्रॉम द बॉय एंड अ girl. If we think about it, this difference is created in the smallest and most everyday things. Means कि अब ये जो अब हम अगर देखें जो differences हैं ये क्रिएट किए जाते हैं बहुत ही छोटे तरीक़ों से, और जो हमारी रोज़मर्रा की जो चीज़ें होती हैं उनसे ये सिखाया जाता है दैट जो गर्ल है शी इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द बॉय। ओके, हाउ गर्ल्स मस्ट ड्रेस, व्हाट गेम्स बॉयज शुड प्ले, कि गर्ल्स को कैसे ड्रेसअप होना है, बॉयज़ को क्या खेलना है, गर्ल्स को कैसे बात करनी है, और बिहेवियर क्या होगा लड़कों का और गर्ल्स का क्या बिहेवियर होगा। हाउ गर्ल्स नीड टू टॉक सॉफ्टली एंड बॉयज़ नीड टू बी टफ। गर्ल्स को क्यों बात करनी चाहिए सॉफ्टली और जो बॉयज़ हैं उनको क्यों बात करनी चाहिए टफ। ऑल दीज आर वेज ऑफ टेलिंग चिल्ड्रन दैट दे हैव स्पेसिफिक रूल्स टू प्ले व्हेन दे ग्रो अप टू बी अ मैन एंड वुमेन। तो ये जो चीज़ें हैं रोज़मर्रा के एवरीडे थिंग्स जो ये स्मॉल इम्पैक्ट डालते हैं छोटे बच्चों पे, कि ये बताते हैं यहाँ पे कि जो एक बॉय है और जो एक गर्ल है उनको कितने ज़्यादा डिफरेंट ये है आस्पेक्ट्स है, कि कितने ज़्यादा ये डिफ्रेंशिएट किया जाता है, कि एक जो गर्ल है एक जो बॉय है उनको उनके जो रहने सहने का जो तरीका है वो बहुत ही ज़्यादा अलग है। लेटर इन दिस लाइफ दिस अफेक्ट द सब्जेक्ट वी कैन स्टडी और द करियर्स वी कैन चूज़। तो फिर इससे क्या होता है लेटर जो इनके जो लाइफ पे क्या अफेक्ट पड़ता है, इससे ये अफेक्ट पड़ता है जो उनकी जो सब्जेक्ट्स है और जो इनकी जो स्टडीज़ है और जो इनके करियर्स है, कि इनको कैसे अपने सब्जेक्ट्स चूज़ करने हैं और उनके करियर पे कैसे अफेक्ट होता है। In most society, including our own, the rules men and women play or the work they do are not valued equally. अब बहुत सारी सोसाइटीज़ में और हमारी जो अपनी सोसाइटी, इफ़ वी लुक अराउंड, जो हमारे जो मैन और वुमेन के रूल्स है, दे आर वेरी क्वाइट डिफरेंट। वाई दे आर वेरी क्वाइट डिफरेंट, बिकॉज जब एक मर्द काम करता है, व्हेन अ मैन do some work, his work is valued. When a woman do the same work, her work is not valued equally. Men and women do not have the same status. Let us look at how differential exists the work done by men and women. जो औरत और जो मर्द हैं उनके जो काम हैं वो बहुत ही उनका एक सेम स्टेटस नहीं होता है। तो इधर क्या होता है, इधर ये एक डिफ्रेंशिएट्स दिखाता है कि कैसे हमारे बीच में क्या है डिफ्रेंशिएट एग्जिस्ट करती हैं हमारी सोसाइटी में। Valuing housework, Harmeet's family did not think that the work Jaspreet did within the house was real work. This feeling is not unique to their families. Across the world, the main responsibility for housework and caregiving tasks like looking after the family, especially children, the elderly and sick members, lies with women. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर एक हरप्रीत की फैमिली है, डिड नॉट थिंक, वो ये नहीं सोचती है दैट द वर्क ऑफ जसप्रीत डिड विद इन द हाउस
वाज रियल वर्क। ये जो फीलिंग है ये एक यूनिक फीलिंग होती है टू देयर फैमिलीज, ये अपनी फैमिली के साथ जुड़ी होती है। अक्रॉस द वर्ल्ड अगर हम देखें जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हाउस वर्क की, केयर गिविंग, उनको केयर गिविंग टास्क दिए जाते हैं, जस्ट लाइक कि लुकिंग आफ्टर द फैमिली, अपनी फैमिली की देखभाल करना, स्पेशली चिल्ड्रन, और जब कोई बड़ा बुज़ुर्ग बीमार होते हैं उनका वो उन मेंबर्स की क्या करना, उनकी देखभाल करना, मीन्स कि ये सारा कुछ किसके साथ जुड़ा है, ये एक वुमेन के साथ जुड़ा है। येट एज वी हैव सीन द वर्क दैट वुमेन डू विद इन द होम इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज वर्क। अब हम यहाँ पे और भी क्या चीज़ देखते हैं, जो एक औरत जब वो अपने घर पे काम करती है तो ये जो सारा काम है उसको ये रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है कि ये क्या कर रही है, ये काम कर रही है, बल्कि ये भी तो काम ही है। इट इज़ ऑल्सो एज्यूम्ड दैट दिस इज़ समथिंग दैट कम्स नेचुरली टू वुमेन। तो ये कैसे एज्यूम किया जाता है, इट इज़ एज्यूम लाइक दैट दिस इज़ समथिंग दैट इज़ कम टू नेचुरली, मीन्स कि नेचुरली है वुमेन के साथ। इट देयर फोर डज नॉट हैव टू बी पेड फॉर, मीन्स कि इसके लिए तो हमें कुछ पेड नहीं करना होता है। एंड सोसाइटी डिवैल्यूज दिस वर्क, और जो सोसाइटी है वो इस काम की वैल्यू नहीं करती है बल्कि वो डिवैल्यू करती है। Lives of domestic workers. In the story above, Harpreet's mother was not the only one who did the housework. Means कि अभी जो हमने स्टोरी पढ़ी, हरप्रीत की जो मदर है वो एक अकेली औरत नहीं है जिसको क्या मीन्स कि वो जो काम करती है। अ लॉट ऑफ द वर्क वाज डन बाय मंगाला, देयर डोमेस्टिक हेल्पर, मनी होम्स पर्टिकुलर इन टाउन्स एंड सिटीज एम्प्लॉय डोमेस्टिक वर्कर्स। दे डू अ लॉट ऑफ वर्क, स्वीपिंग एंड क्लीनिंग, वॉशिंग क्लोथ्स एंड डिशेज, कुकिंग, लुकिंग आफ्टर द चिल्ड्रन और द एल्डरली। तो ये बहुत ज़्यादा काम करती है, एज वी नो, एज वी see our mothers to work at home. Most domestic workers are women. Sometimes even young boys or girls are employed to do this work. ठीक, तो कभी कभी क्या होता है, इस डोमेस्टिक वर्क के लिए भी हम क्या हायर करते हैं, हम ये गर्ल्स को या बॉयज़ को हायर करते हैं, वाई टू डू दिस वर्क। वेजेस आर लो एज डोमेस्टिक वर्कर डज नॉट हैव मच वैल्यू। वे इनकी जो तनख्वाह होती है, इनकी जो वेज होते हैं दैट आर वेरी लो एज डोमेस्टिक, जो डोमेस्टिक वर्क होता है तो उसको क्या ज़्यादा वैल्यू नहीं की जाती। ए डोमेस्टिक वर्कर्स डे कैन बिगिन एज अर्ली एज 5 in the morning and as late as 12 at night। तो जो डोमेस्टिक वर्कर का जो ये दिन है वो कब शुरू होता है, वो शुरू होता है मीन्स कि 5 बजे से, ठीक है, और एंड होता है रात के 12 बजे। डिस्पाइट द हार्ड वर्क दे डू, देयर एम्प्लॉयर्स ऑफन डू नॉट शो दैम मच रेस्पेक्ट। दिस इज़ व्हाट मेलानी एंड डोमेस्टिक वर्कर हैड टू से अबाउट हर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन दिल्ली। माई फर्स्ट जॉब वाज विद अ रिच फैमिली दैट लिव्ड इन अ 3-storied house. The Mem Sahib was very strange as she would shout to get my work done. माई वर्क वाज इन द किचन। तो ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जो मेलानी है ये एक डोमेस्टिक वर्कर होती है, ये अपने एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करती है जब ये काम कहाँ पे कर रही थी, दिल्ली में। इसकी जो फर्स्ट जॉब थी वो एक रिच फैमिली के साथ थी, जहाँ पे मतलब वो जो 3-storied हाउस में वो रहते थे, 3 मंजिला मकान में वो रहते थे। तो ये क्या बोलती थी, उसका जो काम होता था वो किचन में होता। देयर वर 2 other girls who did the cleaning। वहाँ पे 2 और लड़कियाँ थी जो क्या करती थी, सफाई। आवर डे वुड बिगिन एट 5। उनका जो 5 से उनका दिन 5 AM से उनका जो दिन है वो स्टार्ट होता था। फॉर ब्रेकफास्ट he would get up a cup of tea and do dry rotis। we could never get a third roti। तो उसको मीन्स कि ब्रेकफास्ट में क्या दिया जाता है, 1 कप ऑफ टी और 2 रोटीज़, और कभी उनको तीसरी रोटी नहीं मिली। इन द इवनिंग व्हेन आई कुक्ड द फूड द 2 other girls would beg me to give them extra रोटी। तो अब ये क्या बोल रही है, मेलानी बोल रही है, जब मैं शाम को खाना बना रही थी तो वहाँ पे जो 2 और लड़कियाँ थी, दे begged मी इन फ्रंट ऑफ मी, मीन्स कि उन्होंने बोला कि प्लीज़ हमें क्या एक एक्स्ट्रा रोटी दी जाए। I would secretly give it to them and make an extra one for myself। तो ये अब ये क्या करती थी, ये चुपके इनको क्या देती थी, एक एक्स्ट्रा रोटी, और ये एक एक्स्ट्रा खुद के लिए भी बनाती थी। We were so hungry after working through the day। तो ये मीन इट्स वेरी obvious because they are doing all the household chores और वेरी लॉन्ग। तो
इनको क्या हो जाते थे, दे वेर सो हंग्री, वी कुड नॉट वेयर चप्पल्स इन द हाउस इन द विंटर। तो अब यहाँ पर और दूसरे चीज़ उन्होंने क्या बोले मेलानी ने कि हम वो उनको चप्पल भी नहीं मिलती थी जब वो मीन्स कि एंटर करते थे हाउस में इन द विंटर में आवर फीट वुड स्वेल अप इन विद द कोल्ड। तो ठंड की वजह से जो इनकी जो फीट होते थे, जो इनके पैर होते थे, वो स्वेल अप मीन्स कि उन पे वर्म चढ़ जाता था। आई यूज टू फील स्केर्ड ऑफ द मेब्स but also felt angry and humiliated. Did we not work all day? Did we not deserve to be treated with some respect? So in fact, what we commonly term as housework actually involves many different tasks. A number of these tasks require heavy physical work. In both rural and urban areas, women and girls have to fetch water. तो आप क्या बोल रही थी? जो मेलानी है वो कह रही थी कि क्या हम पूरे दिन काम नहीं करते थे, क्या हमें मीन्स कि हम पूरे दिन काम करते थे, हमें चप्पल नहीं अंदर ले जाने देते थे, हमारे पैर को स्वेलिंग अप हो जाती थी। तो वो क्या कहती थी, क्या हम पूरे दिन काम नहीं करते थे, तो फिर भी काम करने के बरक्स भी उनको क्या मीन्स कि ट्रीट किया जाता था as a very means ki that they are very poor like this and that. Okay, in fact what we commonly term as work जो हाउस वर्क की होती थी actually involves many different tasks जो a number of these tasks require heavy physical work. ठीक है, अगर हम देखें both rural and urban areas में जो women हैं, जो girls है, have to fetch water, उनको क्या लाना होता था, means कि पानी लाना होता था. fetch means to bring. In rural areas women and girls carry heavy लोड्स ऑफ फायरवुड. तो रूरल एरियाज़ में अगर हम देखें तो जो वुमेन है, गर्ल्स है, उनको बहुत ही हेवी ये जो मीन्स की लकड़ियाँ जलाने के लिए जो लकड़ियाँ जमा करती थी, फिर वो अपने मीन्स के हेड पे रखती, तो उनको हम हेड लोड्स कहते हैं. टास्क्स लाइक वॉशिंग क्लोथ्स, क्लीनिंग, स्वीपिंग एंड पिकिंग अप लोड्स रिक्वायर बेंडिंग, लिफ्टिंग एंड कैरिंग. ठीक, मनी चोर्स लाइक कुकिंग इन्वॉल्व स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग आवर्स इन फ्रंट ऑफ हॉट स्टोव्स. तो मीन्स की जो एक गर्ल्स है, जो एक वुमेन है, तो उनको बहुत ज़्यादा काम होते लाइक वॉशिंग क्लोथ्स, क्लीनिंग, स्वीपिंग, पिकिंग अप लोड्स रिक्वायर बेंडिंग, लिफ्टिंग एंड कैरिंग. ठीक है, तो ये बहुत सारे जो ये ऐसे ये हाउस होल्ड चोर्स है, जैसे कि कुकिंग है इन्वॉल्व. अगर हम कुकिंग की बात करें, ये इन्वॉल्व करता है स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग आवर्स, मीन्स कि लॉन्ग आवर के लिए, मीन्स कि चूल्हे के सामने, हॉट चूल्हे के सामने ये खड़ी रहती है और खाना बनाती. द वर्क वुमेन डू इज स्टर्ननेस एंड फिजिकल डिमांडिंग, वर्ड्स दैट वी नॉर्मली एसोसिएट विद मैन. और अब अगर हम इसके बरक्स मैन की बात करें, जो एक वुमेन होती है, मीन्स कि उनको कितना फिजिकल काम कितना ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू मैन. अनदर aspect of housework and caregiving that we do not recognize is that it is very time consuming. हम ये नहीं देखते जो हाउस वर्क होता है, जो हाउस होल्ड वर्क होता है या केयर गिविंग है, हम ये नहीं सोचते या हम इसको ऐसे उस वे में रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं कि इट इज़ वेरी अ टाइम कंज्यूमिंग. in fact if we add up the housework and the work women do outside the home, we find that women spend much more time working than men and have much less time for leisure. Below is some data for specially studied by the Central Statistical Organization of India 1998 से लेकर 1990 तक है ये. अगर हम देखें वुमेन की मीन्स की स्टेट लाइक हरियाणा एंड तमिलनाडु, वुमेन पेड वर्क आवर्स पर वीक. तो वुमेन अनपेड हाउस वर्क आवर्स पर वीक. वुमेन के टोटल अगर हम देखें तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिखाया. अगर हम मैन की बात करें तो यू कैन चेक द टेबल above. Okay, women's work and equality. As we have seen, the low value attached to women's household and caregiving work is not an individual or family matter. ठीक है, it is a part of a large system of inequality between men and women. तो अगर हम देखें जो वुमेन का जो काम है और अगर हम उसकी इक्वालिटी की बात करें तो हम देखेंगे जो ये वुमेन है, वुमेन का जो हाउस होल्ड का काम है या केयर गिविंग का काम हो जो होता है, ये इज़ नॉट एन इंडिविजुअल, ये एक इंडिविजुअल की या फैमिली मैटर नहीं है. इट इज़ नॉट
नॉट दैट कम नेचुरली दैट ये वुमेन को ही करना है नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ ए लार्ज सिस्टम ऑफ इनक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन। तो ये एक इनक्वालिटी है एक मैन और वुमेन में। इट देयरफॉर हैज़ टू बी डेल्ट विद थ्रू एक्शंस नॉट जस्ट एट द लेवल ऑफ द इंडिविजुअल और द फैमिली बट also by the government. As we now know, equality is an important principle of our constitution. अगर हमें पता है कि जो equality है it's a very important principle of our constitution. The constitution says that being male or female means कि जो constitution है, जो हमारा संविधान, जो हमारा आइन है, वो क्या कहता है कि being a male or a female should not be become a reason for discrimination. उनको reason नहीं बनाया जाता है, नहीं बनना चाहिए किसका, discrimination. In reality जो inequality है between the sexes exists, the government is therefore committed to understanding the reason for this and taking positive step to remedy the situation. जो गवर्नमेंट है वो इट सेल्फ रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए। अब अगर कहीं पर ऐसा कुछ भी मीन्स की डिस्क्रिमिनेशन हुई तो ये जो गवर्नमेंट है ये पॉजिटिव स्टेप और रेमेडी टेक करेंगे towards the situation. For example, it recognizes that burden of child care and housework falls on women and girls. This naturally has an impact on whether girls can attend school. It determines whether women can work outside in the house and what kind of jobs and career they can have. तो नेचुरली क्या होता है, ये इस पे सारा किस पे ये इम्पैक्ट पड़ता है कि जो लड़की है वो बाहर जाके क्या स्कूल अटेंड कर सकती है, या जो वुमेन है वो आउटसाइड वर्क कर सकती है अलॉन्ग विद द हाउस होल्ड वर्क। तो इससे मतलब कि जब वो बाहर जाए तो व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स या करियर वो मीन्स कि अचीव कर सकती है। तो गवर्नमेंट हैज़ सेट अप आंगनवाड़ीज़ और चाइल्ड केयर सेंटर्स इन सेवरल विलेजेस इन द कंट्री। जो गवर्नमेंट ने एक ऐसा स्टेप लिया कि जो उन्होंने क्या किया, उन्होंने आंगनवाड़ी या हम कहें चाइल्ड केयर सेंटर्स खोले हैं इन सेवरल विलेज ऑफ द कंट्री। ठीक, तो गवर्नमेंट हैज़ पास्ड लॉज दैट मेक इट मैंडेटरी फॉर ऑर्गेनाइजेशन दैट हैव more than 30 women employed to provide creche facilities. The provision of creches helps many women to take up employment outside the home. तो इससे क्या हुआ, जो ये आंगनवाड़ी जो सेटअप हुई मतलब मोस्ट ऑफ द विलेजेस में इन द कंट्री, तो इसमें क्या हुआ, जो ये 30 वुमेन हैं उनको मीन्स के एम्प्लॉय बनाए गए यहाँ पे। तो फिर इसके लिए इनको क्या किया जाता था, इस चाइल्ड केयर के लिए इनको पे किया जाता था। इट ऑल्सो मेक्स इट पॉसिबल फॉर मोर गर्ल्स टू अटेंड स्कूल। तो इससे क्या हुआ, इट इज़ पॉसिबल टू बहुत सारी लड़कियों के लिए कि ये क्या करें, स्कूल अटेंड करें। Okay, so here is your chapter complete. Thanks for watching.